Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar Sahab, Dr. Mrs. Sudesh Dhankar Sahiba, Honorable Lieutenant Governor and Chancellor of Shri Mata Vaishno Devi University, Manoj Sinha Sahab, Honorable Minister of Education, Government of Jammu and Kashmir, Sakina Yatu Sahiba, Vice Chancellor of Shri Mata Vaishno Devi University, Professor Pragati Kumar Sahab, Honorable Member of Parliament, Honorable MLA, senior officers of the Government of Jammu and Kashmir, esteemed faculty, distinguished guests, proud parents, and most importantly, the graduating students. It is an absolute honor to stand before you today on this momentous occasion, a day of celebration, reflection, and new beginnings. A convocation is not just about receiving degrees. It is a milestone that marks years of hard work, resilience, and dreams turned into reality. Graduates, today as you sit here, adorned in your convocation robes, you are not just individuals earning degrees. You are torchbearers of knowledge, perseverance, and dedication. You have faced challenges, sleepless nights, and moments of doubt. But despite it all, you emerged victorious. Today is a testament to your spirit and determination. Congratulations. Let's also take a moment to acknowledge those who made this journey possible. Your parents, your teachers, your mentors, your guides, your friends, who supported and guided you. Their sacrifices and encouragement have played an integral role in shaping your success. We are privileged to be a part of an institution named after Mata Vaishno Devi, the embodiment of power, wisdom, and devotion. Her journey to the Trikuta Hills symbolizes patience, courage, and righteousness, values that each of you should carry as you step into the next phase of your life. Like Mata Vaishno Devi's unwavering faith and determination, you too will encounter obstacles and tests. But remember, success is not just about achieving milestones. It is also about how you overcome challenges, stay true to your principles, and uplift others along the way. You are entering a world that is rapidly evolving, a world of artificial intelligence, climate change, startups, and global competition. Your degree is not just a piece of paper. It is your key to making a difference. For the entrepreneurs among you, build solutions that create impact. For the scientists, innovate for a better tomorrow. For the artists and writers, inspire the world through your creativity. For the leaders and managers, lead with integrity and vision. But amidst all this, do not forget the most important lesson. Success is not just about personal achievements, but about contributing to society. India and the world need ethical, compassionate, and responsible leaders. The journey ahead will not always be easy. There will be setbacks, failures, and moments of self-doubt. But remember, failure is not the opposite of success. It is a part of success. Every great leader, scientist, or entrepreneur you admire has faced rejection before achieving success. Never stop learning. The moment you stop learning, you stop growing. Stay curious, stay humble, and embrace change with an open mind. As you step out of these gates, remember, dream big, but work even harder. Stay grounded, but aim for the stars. Seek success, but never compromise on values. Give back to society, because true success is in service. Graduates, today is your day. The world awaits your brilliance, your ideas, and your leadership. Go out there and make a difference. Carry the legacy of Mata Vaishno Devi University with pride. And wherever you go, let your light shine. Congratulations once again. May Mata Vaishno Devi bless you with strength, wisdom, and an extraordinary future ahead. Jai Hind.
महामहिम उपराष्ट्रपति जी, डॉक्टर महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, शिक्षा मंत्री श्रीमती सकीना इट्टू जी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रगति कुमार जी, माननीय सांसद श्री युगल किशोर जी, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्य, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू, डीजीपी श्री नलिन प्रभात, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल के सभी सम्मानित सदस्य, विभिन्न प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर्स, फैकल्टी मेंबर्स और इस दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही जी, आदरणीय डॉक्टर राम सेवक शर्मा जी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं माता वैष्णो देवी की पावन धरा पर सबसे पहले महामहिम उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस यूनिवर्सिटी के दीक्षित युवाओं का सौभाग्य है कि अपनी नई यात्रा शुरू करने से पहले आपको महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। संविधान और विधायी मामलों के पारखी होने के साथ साथ महामहिम उपराष्ट्रपति जी, मैं मानता हूं कि उच्च कोटि के एक मौलिक चिंतक भी हैं तथा राष्ट्रीयता एवं वैश्विक मानवता पर उनके बुनियादी विचार एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देते हैं जो वर्ग विहीन यानी समता तथा सामाजिक न्याय पर आधारित है। आज मुझे यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक दायरे से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में कदम रख रहे युवा बच्चों और बच्चियों से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। यह दीक्षांत समारोह 1.5 महीने पहले यानी 27 दिसंबर को होना तय हुआ था, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देहावसान के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करना चाहता हूं आज फिर एक बार। साथियों, मैं समझता हूं कि पिछले 2 दशक से श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी युवा बच्चों और बच्चियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए तैयार कर रहा है, ताकि वह अपने काम के माध्यम से राष्ट्र की नियति को नया आकार दे सके। आज के कन्वोकेशन में शामिल बैच के पास भी एक अनूठा अवसर है कि वो अपने स्पेशल नॉलेज और स्किल्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष की तकदीर बदल सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को, उनके माता पिता को, उनके गुरुजनों को भी बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आज दीक्षित हो रहे युवा, उनमें समर्पण, दृढ़ संकल्प और विश्वास की कोई कमी कभी नहीं रहेगी। मुझे अत्यंत गर्व भी है कि मेडल विजेताओं में बेटियों की संख्या बेटों से लगभग दुगनी है। 17 बेटियों ने जहां गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, वहीं 9 बच्चों को मेडल मिला है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन तथा इन्फोसिस फाउंडेशन प्राइज में भी हमारी बच्चियों ने ही बाजी मारी है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। ये इस बात का संकेत देता है कि राष्ट्र निर्माण का नेतृत्व हमारी बच्चियां करने वाली हैं और इस महान देश के भाग्य विधाता बनकर समाज की समृद्धि को भी सुनिश्चित करने वाली हैं। मैं 2 और विशिष्ट महानुभावों को, जिनको मानद उपाधि दी गई है,
डॉक्टर शिवदत्त निर्मोही जी, डॉक्टर राम सेवक शर्मा जी को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। ये आपके लिए नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव का विषय है कि आप दो महान व्यक्तित्वों को आज मानद पीएचडी की उपाधि विश्वविद्यालय दे सका। साथियों, प्रकृति का स्वभाव है कि जो भी उपलब्ध है उसे साझा किया जाए, उसे शेयर किया जाए। बगीचों में सुबह सुबह जब फूल खिलते हैं तब उनके हृदय में प्रार्थना भरी होती है और पूजा के लिए जो भक्त जा रहे होते हैं उसे लेकर वे भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में लिखा, जेटुक पर रंग ढेर छे, गंधे सुधाय बुक भरे छे, तुम्हार सेवाय लो सेटुकु थाकते सुषमय। फूल कह रहे हैं, फ्लावर्स कह रहे हैं कि मेरे भीतर जितना भी रंग खिला है, जितनी सुगंध और सुधा भरी है, समय रहते अपनी सेवा में ले लो, नहीं तो तुम्हारी पूजा बेजा बीत जाएगी। यही भाव सभी युवाओं के मन में भी होना चाहिए। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलेंगे, मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आपको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्द याद रहेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिस विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं, उस महायज्ञ में आप अपने काम को समर्पित करेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि जो युवा नई नौकरियों को ज्वाइन करेंगे वो सिर्फ कैरियर का एक पड़ाव नहीं उसे समझेंगे, बल्कि फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के मिशन के रूप में काम करेंगे, जो आपके व्यक्तिगत विकास के साथ साथ जन आकांक्षाओं को भी पूरा करेगी। आपके अर्जित स्किल्स और नॉलेज तभी सफल माने जाएंगे जब आपके माध्यम से लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मैं सदैव एक बात कहता हूं कि स्कूल और यूनिवर्सिटी का कैंपस दो ऐसे स्थान हैं जहां भविष्य को आकार दिया जाता है। स्कूल और यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो भविष्य को आकार देने वाले टैलेंट्स में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, नॉलेज, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य, साइंटिफिक टेम्पर और 21वीं सदी की आवश्यक स्किल्स के साथ साथ लाइफ लर्निंग स्किल्स को भी बढ़ावा दें, नर्चर करें। मैं असली शिक्षा उसे मानता हूं जो मन में संदेह पैदा करने की गुंजाइश पैदा करे, जो सवाल पैदा करे, जो मन को इग्नाइट करे, जो जिज्ञासा को जन्म दे सके तथा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रोत्साहित कर सके। इस दृष्टिकोण से मुझे व्यक्तिगत रूप से महाभारत के कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि प्राचीन काल का सबसे वाइब्रेंट और प्रैक्टिकल कैंपस मानता हूं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है वह जिज्ञासा, संदेह, सवाल, क्रिएटिविटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स से पूरा भरा हुआ है। और आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, डिफेंस सेक्टर हो, पब्लिक लाइफ हो और स्टूडेंट्स के लिए भी इससे बेहतर और प्रेरणादायक शिक्षा कहीं और दूसरी जगह नहीं मिल सकती। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वकया धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जय पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से कर्म करो। परफॉर्म एक्शंस विद एन अनवेवरिंग माइंड एंड विदाउट थिंकिंग ऑफ विक्ट्री और लॉस। यह जीवन का मैं समझता हूं सबसे बड़ा मंत्र है और मैं चाहूंगा कि अपनी परंपरा, मानवीय मूल्यों और संस्कृति के तत्वों को संरक्षित रखते हुए आप सभी समभाव से व्यक्तिगत उपलब्धियों के गौरव को छूते हुए भारतवर्ष के विकास में अपना योगदान दें। साथियों, आधुनिक विश्व ने 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखे और उन चारों को जोड़कर अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि ग्रोथ का संपूर्ण परिदृश्य आश्चर्यचकित करने वाले तरीके से बदल गया है, क्योंकि हर एक रिवॉल्यूशन में
कोई न कोई एक मजबूत आधार था। 1765 में जब पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब उसका आधार कोयला था, कोल था। इसका कालखंड 1870 तक था। इसका एक दूसरा आधार भी था जिसे मैं समझता हूं कि इतिहासकारों ने दबा दिया और इसे जानना बड़ा जरूरी है, कम से कम आज भारत की नई पीढ़ी को, और वह था इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की फंडिंग और रिसोर्स भारत ने दिए थे। 1765 से लेकर 1870 के दौर में इंग्लैंड ने भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, भारत को लूटा और उस लूट से इंग्लैंड की आर्थिक प्रगति संभव हो सकी। अन्यथा इंग्लैंड इतना गरीब देश था, वहां बहुत बड़ी आबादी को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं हुआ करती थी। इस पर आगे मैं और चर्चा करूंगा। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पश्चात 1875 में जब दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तब उसका आधार गैस बना। 1969 में तीसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आधार इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर पावर बना। सन 2000 के बाद या 2000 को चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हम मानते हैं, लेकिन इसमें असली प्रगति 10 वर्ष के बाद 2010 के बाद आई, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी, वर्चुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड को आपस में मिला दिया गया।